बताती रहूंगी, plus I will explain everything. So Section 1 of TPA 1882, this act may be called the Transfer of Property Act 1882. Commencement, it shall came into force on first day of July 1882. This is important for prelims. ऐसे questions आ जाते हैं कि कभी enforce हुई, इसकी enforcement date क्या है. So this is important for prelims. Extent, it extends in the first instance to the whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the states of Bombay, Punjab and Delhi. जो एक्ट है टीपीए ये अप्लाई नहीं होती है इन 3 स्टेट्स पे, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, प्लस जो 1 नवंबर 1956 से पहले जो स्टेट्स थी पार्ट बी स्टेट्स, उन्हीं को तोड़कर बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली वाज आल्सो पार्ट ऑफ दो स्टेट्स, तो इन स्टेट्स भी एप्लीकेबल नहीं है. पॉइंट ये है कि हरियाणा में इट इज एप्लीकेबल, बट स्टिल इफ यू विल सी ना एग्जाम्स में, तो टीपीए डज कम इन पंजाब बट नॉट इन हरियाणा, इवन दो हरियाणा में ये एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं. But this act or any part thereof may by notification in the official gazette to extend it be extended to the whole or any part of the said territories by the said government concerned. But जो government है इसे notification निकाल के official gazette में इसे apply करवा सकती है किसी भी state में in case if it is necessary, although it is not applicable to the state concerned, but state government इसे notification के साथ apply करवा सकती है. And any state government may from time to time by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions. और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं किसी भी स्टेट को इसकी एप्लीकेशन से, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिवली हो चाहे वो प्रोस्पेक्टिवली हो. रेट्रोस्पेक्टिवली होता है जब पीछे से एक्ट के आने से पहले की चीजें, और प्रोस्पेक्टिवली होता है जो बाद की चीजें, एक्ट आने के बाद की सिचुएशन. तो इन दोनों चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है. सो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर कि इसको अप्लाई करवा सकती है कहीं पे भी और एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कहीं भी कि आप पर टीपीए नहीं लगेगी. विद रिस्पेक्ट टू ऑल सारी प्रोविजंस के लिए या फिर ये जो प्रोविजंस नीचे दी गई है दैट इज सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 and 3, सेक्शन 59, 107 and 123. Notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 paragraph 2 and 3, 57, 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of Indian Registration Act under the power conferred by the first section of that act or otherwise. जो भी ऊपर प्रोविजंस दिए हैं उनके हिसाब से ना चलते हुए ये जो प्रोविजंस हैं ये एक्सटेंड उन जगह पर नहीं करेंगी जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता. मतलब जहां जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगा उन जगह पर ये प्रोविजंस नहीं अप्लाई कर सकते. सिंपल भाषा में यही है कि जहां पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता जिन पार्ट में, उन पार्ट्स में हम ये प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर सकते. Section 2, repeal of acts, saving of certain enactments, incidents, rights, liabilities, etc. In the territories to which this act extends for the time being by the enactment specified in schedule hereto annexed shall be repealed to the extent thereby mentioned. But nothing herein contained shall be deemed to affect. जो पहले से चल रही हैं प्रोविजंस वो इसको इफेक्ट नहीं करेंगी, वो रिपील हो जाएंगी, पर ये प्रोविजंस उन्हें इफेक्ट नहीं करेंगी जो प्रोविजंस of any enactment not hereby expressly repealed. ये एक्ट उन प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगी जो प्रोविजंस को ये एक्ट एक्सप्रेसली रिपील नहीं करती. जब तक कि प्रोविजन का इसके बारे में नहीं लिखा हुआ एक्ट में तब तक हम उन्हें रिपील या उन पे कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते. Any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provision of this act and are allowed by the law for the time being in force. जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या पार्टीज के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी को लेके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई अग्रीमेंट्स हैं जो कि इस प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं है, उनको भी टीपीए कुछ नहीं मतलब इफेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ टीपीए. जो चीजें ऑलरेडी कंसिस्टेंट है इन प्रोविजंस के साथ उन पर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. Any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force or any relief in respect of any such right or liability.
प्लस टीपीए विल नॉट अफेक्ट द राइट्स लायबिलिटीज जो कि पहले से क्रिएट हो चुके थे इस एक्ट के आने से पहले। मतलब 1 जुलाई 1882 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने या कोई राइट्स किसी को मिल गए या किसी के पास कोई रिलीफ का राइट आ गया, जो भी राइट्स या लायबिलिटीज आई उन पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Save as provided by Section 57 and Chapter 4 of this Act, any transfer by operation of law or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction. Along with this, ये provisions Chapter 4 या Section 57 को छोड़कर किसी भी ट्रांसफर को, एग्जीक्यूशन को, डिक्री को जो कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने पास की थी उन सब चीजों को इफेक्ट नहीं करेगी। And nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. प्लस सेकेंड चैप्टर जो मोहम्मदन लॉ है, मुस्लिम लॉ के एक्ट है जो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जो भी उनमें ट्रांसफर्स हो रहे हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, कोई गिफ्ट जा रहा है, कोई भी चीज हो रही है, उन पर इसका चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड चैप्टर विल नॉट अप्लाई टू दैट। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। In this act, unless there is something repugnant in the subject or context, immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. इसकी जो डेफिनेशन है ये नेगेटिव डेफिनेशन है, ये कोई हमें ये नहीं बताती कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करती है, बट ये सिंपली बताती है कि 3 चीजें कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती, जो कि है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इन्हें छोड़कर कोई और चीजें इमूवेबल हो सकती हैं, बट ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं की जा सकती। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वही है जो विल वगैरह नहीं है, क्योंकि विल्स वगैरह तो टेस्टामेंट्री होते हैं जो कि इफेक्ट में ही इंसान की डेथ के बाद आते हैं। सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब यू कैन एग्जीक्यूट देम, जब आप लिविंग हो, जब आप अलाइव हो तभी उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, उनके बीच में एग्रीमेंट्स किया जा सकता है पार्टीज के बीच में, मतलब कुछ भी किया जा सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affixes mark to the instrument. अटेस्टेशन का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा विटनेसेस ने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया हो, प्लस वो जो इंसान है जो अटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए या कोई मार्क अफिक्स करते हुए देखा हो। मार्क इन द सेंस, अगर बंदा कोई साइन नहीं कर सकता, वो अपने इनिशियल्स लिख दे या फिर अपना थंब इम्प्रेशन दे दे, तो किसी भी तरह उसे एग्जीक्यूटेंट को साइन या मार्क को अफिक्स करते हुए देखा हो, और हैज सीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, या फिर उन्होंने ऐसे किसी इंसान को एग्जीक्यूट करते हुए उस डॉक्यूमेंट को देखा हो जो कि एग्जीक्यूटेंट की डायरेक्शंस पे उसे साइन कर रहा है। जस्ट इन केस एग्जीक्यूटेंट साइन नहीं कर सकता या माइनर है, तो उसके बिहाफ पे कोई और इंसान उसकी बजाय साइन कर रहा है, उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे उन्होंने एग्जीक्यूट करते हुए देखा हो, और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए सिग्नेचर और मार्क, या फिर उन्होंने एग्जीक्यूटेंट से उसकी एक्नॉलेजमेंट ली हो कि हाँ जी मैंने ये साइन किया था, मैंने ये मार्क लगाया है, या फिर किसी और ने मेरे बिहाफ में मार्क लगाया है, खुद एग्जीक्यूटेंट उन्हें ये बात बताता है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, or of the signature of such other person and each of whom has signed the instrument in the presence of executant। और ये जरूरी है कि अटेस्ट जो कर रहा है वो बंदा वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में अटेस्ट करे, but it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall have been present at the same time and no particular form of attestation shall be necessary। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अटेस्ट कर रहे हैं इंसान 2 या 2 से ज्यादा वो सब इकट्ठे एक ही टाइम पे एक दूसरे की प्रेजेंस में करे, ऐसा कहीं नहीं है, बट इट इज नेसेसरी कि वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में करें, एक दूसरे की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। सपोजिंगली आज एक डॉक्यूमेंट बन गया, अब ए उसे अटेस्ट कर रहा है सुबह, बी उसे कर रहा है शाम को, but that is to be in the presence of executant, not in the presence of each other। और इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म अटेस्टेशन का नहीं बताया गया है, it is just it is required by 2 or more witnesses। Registered, registered means registered in any part of the territories to which this act extends under the law for the time being in force regulating the registration of documents।
रजिस्टर्ड मतलब वो होता है कि उन टेरिटरीज में रजिस्टर करवाना जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, जो कि रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स, जो भी रजिस्ट्रेशन होती है उन सबको रेगुलेट करेगी एज पर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन लॉज. Attached to earth means rooted in the earth, as in the case of trees and shrubs. जो कि चीज अर्थ में रूटेड है उसे हम कहेंगे अटैच टू अर्थ. तीन तरह की अटैचमेंट दी है उन्होंने कि अर्थ के साथ कैसे अटैच हो सकती है चीज. रूटेड इन द अर्थ, जैसे कि ट्रीज और श्रब्स जिनकी रूट्स नीचे तक जा रही हैं, दैट आर कॉल्ड अटैच टू अर्थ. या फिर एम्बेडेड इन द अर्थ, एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स, जो कि बिल्कुल अर्थ के साथ लगी हुई है, एम्बेडेड है प्रॉपरली, जैसे कि बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं. Attached to what is so embedded from for the permanent beneficial enjoyment of that to which is attached. उन चीजों के साथ अटैच है जो कि ऑलरेडी एम्बेडेड है अर्थ में, जैसे कि वॉल्स बिल्डिंग्स तो परमानेंटली एम्बेडेड है. अब उनके साथ कोई चीजें अटैच है परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि विंडोज, कोई फैंस लगा दिए या विंडोज बना दी, दरवाजे बना दिए, तो ये परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए चीजें ऑलरेडी अटैच है, मतलब पक्के तरीके से अटैच की है ताकि हम इसे एंजॉय कर सके, टेम्परेरी बेसिस पर नहीं की है. तो जो चीजें इनके साथ परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए अटैच की गई हैं उन्हें भी हम अटैच टू अर्थ में इंक्लूड करेंगे. Actionable claim means any claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property. एक्शनेबल क्लेम में डेट इंक्लूड किया जा सकता है पर वो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए. तो सिंपल टर्म्स में इसमें जो डेट इंक्लूड करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डेट्स. इसमें अनसिक्योर्ड डेट्स इंक्लूड करते हैं, सिक्योर्ड डेट्स इंक्लूड नहीं करते. सिक्योर्ड होते हैं जो कि हम किसी प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी देकर डेट वो कर रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रख दी, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. इसमें वो एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड होंगे जो कि सिक्योर्ड नहीं डेट्स हैं, वो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं. Or to any beneficial interest in the movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant, which the civil court recognize as affording grounds for relief. या फिर कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि पोजेशन में नहीं है इंसान के, जो कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है कि ग्राउंड्स है उस इंसान के पास रिलीफ के लिए, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. जो एक्शनेबल क्लेम में ये दो चीजें इंक्लूड की गई हैं, अनसिक्योर्ड डेट्स और कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए. ये किसी भी तरह का इंटरेस्ट या डेट हो सकता है, चाहे वो एग्जिस्ट करता हो उस टाइम पे, चाहे वो एक्रू हो जो कि एग्जिस्ट करने वाला है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा और वो थोड़े टाइम में एक्रू कर जाएगा. या फिर कंडीशनल जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड है कि वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. या फिर वो कंटेंजेंट है जो कि फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है कि वो हो भी सकता है, अनसर्टन है एक फ्यूचर इवेंट की वजह से. सो इंटरेस्ट और जो डेट्स है वो एग्जिस्टेंट, एक्रूअल, कंडीशनल और कंटेंजेंट कुछ भी हो सकते हैं. Another definition is of notice. A person is said to have a notice of a fact when he actually knows that fact or when, but for willful abstention for an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it. नोटिस का मतलब क्या होता है कि बंदे को पता होना चाहिए. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नोटिस वो है जब उसे पता है एक्चुअल में, या फिर उसने पता करने की कोशिश ही नहीं की, खुद से ही एब्सेंट रहा इंक्वायरी करने में, सर्च करने में, उसने खुद ही नेग्लिजेंट बना रहा, उसने पता ही नहीं किया, तो हम डीम करेंगे कि उसे नोटिस है. क्योंकि तुमने पता क्यों नहीं किया, तुम कर सकते थे, तुम्हारी खुद की ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हें नहीं पता चला, तो वी विल नॉट से कि तुम्हें पता ही नहीं है. तुम पता कर सकते थे ना, तुम्हारे पास सारे मतलब पावर थी, मतलब यू कुड हैव एक्सरसाइज्ड योर राइट टू इंक्वायर अबाउट द थिंग, सर्च अबाउट द थिंग, बट उस इंसान ने किया नहीं, तो डीम नोटिस हो जाएगा बिकॉज तुम्हारी खुद की ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हें नहीं पता. Explanation 1. Where any transaction is related to immovable property is required by law to be and has been affected by registered instrument. अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई ट्रांजैक्शन हुई है, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, सेल, कोई गिफ्ट, किसी भी तरह की चीज हुई है और वो रजिस्टर्ड है, या फिर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है. Any person acquiring such property or any part of or share or interest in such property shall be deemed to have notice of such instrument as from the date of registration.
तो अगर जो इंसान उस प्रॉपर्टी में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट एक्वायर करता है किसी भी तरीके से, तो हम ये डीम करेंगे कि उसके पास नोटिस है जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुई है. सो ही विल बी डीम टू हैव नोटिस एज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जिस दिन रजिस्टर हुई है उस दिन से उसके पास नोटिस है, हम ये चीज मानकर चल रहे हैं. Or where the property is not all situated in one sub-district, or where the registered instrument has been registered under subsection 2 of section 30 of Registration Act from the earliest date on which any memorandum of such registered instrument has been filed by any sub-registrar within whose sub-district any part of the property is being acquired, or of the property wherein a share or interest being acquired is situated. और जब वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि एक सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बहुत सारी जगहों पर है या दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डीम किया जाएगा जो उसकी पहली की डेट मेमोरेंडम है जो रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का, कि जो कि सब रजिस्ट्रार के पास है, जो कि वो प्रेजेंट करता है, फाइल करता है, तो उस डेट से मानेंगे कि उसे पता चल गया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है या पहले की वहां पर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है. तो वो जो सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन वाला, तो उस डेट के हिसाब से मानेंगे कि उस इंसान को पता है, तो नोटिस उस दिन से शुरू हो जाएगा. Provided that the instrument has been registered and its registration completed in the manner as per Indian Registration Act and the rules made thereunder. ये जरूरी है इस चीज का नोटिस बनाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है. तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे. अगर वो रजिस्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं है तो फिर तो नोटिस मान ही नहीं सकते. उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ जी इट इज registered. The instrument or memorandum has been duly entered and filed, as the case may be, in books kept under Section 51 of the Act. अब इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 51 है वो बुक्स के बारे में बताता है. उसमें 4-5 तरह की बुक्स बताई गई हैं कि ये वाली में ये रजिस्टर होगा, इसमें विल्स रजिस्टर होंगी, इसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे, इसमें ये होगा कि क्या रिफ्यूज कर दिया, वो सारे ना उसमें दी हुई है, बुक्स हैं 5. ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उसमें ये भी जरूरी है कि वो इंस्ट्रूमेंट उसमें लिखा गया हो, फाइल किया गया हो, एंटर किया गया हो, उसकी एंट्री हो प्रॉपर, तभी हम उसे मानेंगे कि हाँ जी वो रजिस्टर हो चुका था. मतलब ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो कि रजिस्ट्रेशन की कंप्लाई करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट मान ही नहीं सकते. 3. The particulars regarding the transaction to which the instrument relates have been correctly entered in the indexes kept under section 55 of the Act. अब रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 55 इंडेक्सेस के बारे में बताता है. ये इंडेक्स बनाए जाते हैं उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग. ये 4 इंडेक्स होते हैं, इसमें उनकी सारी एंट्रीज के बारे में बताया जाता है. तो अगर तुम्हारे सही पर्टिकुलर्स हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सही सही दी गई है, तभी हम उसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मानेंगे. तो ये तीनों पॉइंट्स का कंप्लाई करना बहुत जरूरी है. पहली बात रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज, दूसरी उसकी बुक में एंट्री, तीसरी उसकी इंडेक्सेस में एंट्री. अगर ये सारी चीजें कंप्लीटली की गई हैं तभी ये जो एक्सप्लेनेशन वन है अप्लाई होगी कि डीम नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओनली व्हेन जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, सही तरीके से की गई है और सारी इंफॉर्मेशन सही है. Explanation 2. Any person acquiring any immovable property or any share of interest in any such property shall be deemed to have notice of the title, if any, of any person who is for the time being in actual possession thereof. अब इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, उसमें कोई राइट इंक्वायर कर रहा है, किसी भी तरह का कोई राइट, शेयर, पार्ट, किसी भी चीज को एक्वायर कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसे टाइटल का नोटिस है. क्योंकि जब उसे दिख रहा है कि जो मैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूँ उसमें कोई इंसान ऑलरेडी वहां पे रह रहा है, तो उसे पता तो चल रहा है ना कि किसका राइट है, किसका टाइटल है. वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो लगा था ये ए की प्रॉपर्टी है जबकि उस प्रॉपर्टी में बी रह रहा है. तो एक्चुअल पोजेशन से एटलीस्ट यू कैन इन्फर, यू कैन इंक्वायर. सो इफ एनी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग इन एक्चुअल पोजेशन देयर ऑफ, तो इस वजह से इस पे ये डीम हो जाएगा कि ही नोज हुज टाइटल इट इज. उसके टाइटल के लिए उसका नोटिस उसके ऊपर हम इम्प्लाई कर देंगे अपने आप ही, क्योंकि उसे दिख रहा है, सारी चीजें पता चल रही है कि मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी कोई रह रहा है. अब वो कौन रह रहा होगा, या तो ओनर ही रह रहा होगा, या अगर ओनर ने किसी को दिया है राइट या टाइटल, या किसी को कोई लीज वगैरह पे दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसे पता चल सकता है इस चीज से. सो ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द टाइटल. Explanation 3. A person shall be deemed to have had notice of any fact if his agent acquires notice
thereof while acting on his behalf in the course of business to which the fact is material. तीसरा पॉइंट है एजेंट से रिलेटेड. अगर जो इंसान प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है, उसके एजेंट को पता चल गया है, तो ये डीम है कि उसे पता चल गया है. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ो तो उसमें एजेंसी का सारा दिया हुआ है सेक्शन 182 से, कि प्रिंसिपल अगर एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट को कुछ चीज पता है, एजेंट कुछ प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, तो हम हमेशा डीम करते हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ प्रिंसिपल. इसी चीज को एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है कि अगर एजेंट को पता है तो डीम प्रिंसिपल को भी पता है. तो जिसका एजेंट है, तो अगर उसे पता है तो ऑब्वियस है जिसका एजेंट है उसे भी पता ही होगा. Provided that if the agent fraudulently conceals a fact, the principal shall not be charged with notice thereof as against any person who was a party to or otherwise cognizant of the fraud. But इसकी एक एक्सेप्शन है एक्सप्लेनेशन 3 की, कि अगर एजेंट ही फ्रॉड कर जाए, उसके साथ कोई चीज छुपा ले, तब हम डीम नहीं कर सकते कि उसे पता थी वो बात, क्योंकि उसके एजेंट ने उसके साथ फ्रॉड किया. अगर उसका एजेंट उसके साथ फ्रॉड ना करता, देन इट इज डीम्ड कि हाँ जी प्रिंसिपल को पता है, क्योंकि एजेंट को पता है. अदरवाइज इट इज नॉट अ केस ऑफ नॉलेज टू दी प्रिंसिपल. किसी को कोई डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना. Section 4, enactments relating to contracts to be taken as a part of Contract Act and supplemental to the Registration Act. The chapters and sections of this act which relates to contracts shall be taken as a part of Indian Contract Act. इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करते हैं, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं किसी भी चीज को लेकर जो कि टीपीए डील कर रही है, तो उसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ेंगे कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की वो कंडीशंस फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर रहा है जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है. तो उन चीजों को हम इसके साथ रेडविट करते हैं कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो नहीं है, वॉइडेबल तो नहीं है, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई कर रहा है, क्या उसके एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं. जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. And section 54 paragraph 2 and 3, section 59, 107 and 123 shall be read as supplemental to Indian Registration Act. और ये चार प्रोविजंस इंडियन रजिस्ट्रेशन के एक्ट के साथ रीड की जाएंगी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है कि कोई मॉर्टगेज है या कोई सेल है, किसी चीज को रजिस्टर करना है, तो उसे हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ रीड करेंगे. Chapter 2 of transfer of property by act of parties. Section 5, transfer of property is defined. In the following section, transfer of property means an act which a living person conveys property in present or in future. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बीच में क्या सबसे पहला एसेंशियल है कि लिविंग पर्सन होना चाहिए. इसीलिए हमने यूज किया था ना कि इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, कि दोनों पार्टीज मतलब वो लिविंग होनी चाहिए, कोई विल नहीं बना रहे हैं, एग्जिस्टेंस में है दोनों पार्टीज जो डील कर रही हैं. दूसरी चीज है जो कन्वे कर रही है प्रॉपर्टी, वो फ्यूचर में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है. टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्संस एंड टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट. अब ये जो ट्रांसफर है ये किसी को भी हो सकती है, किसी और इंसान को, खुद को और किसी और को कैसे भी किया जा सकता है. सो इसमें ये जरूरी है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो लिविंग पर्संस के बीच में होना चाहिए. तो अगर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो ये बी को, सी को, डी को, इन सब लोगों को कर सकता है, खुद को भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है एक प्रॉपर्टी को वो खुद को थोड़ी सी और बाकी इन तीनों में बांट दे. सो दिस कैन बी टू एनीवन and that to be in present or in future. In this section, living person includes company, association, or body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, association, or body of individuals. So living persons में सिर्फ normal individuals include नहीं होते, बल्कि कंपनी, एसोसिएशन, कोई बॉडी है इंडिविजुअल्स की, सबके सब इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं. सेक्शन 6, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द प्रीलिम्स. इसमें से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, इवन मेंस में भी क्वेश्चन आना है इसमें से. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड
किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, पर इसमें ये जो दी हुई है सेक्शन 6 में ए से लेकर आई तक, ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ए से लेकर आई तक ये कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो कि ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सो फर्स्ट इज the chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, or any other mere possibility of like nature cannot be transferred. Heir apparent अपनी succeed कर सकता है जो estate को, वो transfer नहीं कर सकता। अब एक इंसान है ए, जब उसके फादर की डेथ होगी तो उसे प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब वो प्रॉपर्टी मिल सकती है नहीं मिल सकती, अब ये तो भाई कंटेंजेंसी है, मतलब ये तो एक फ्यूचर इवेंट है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि उसे पक्का पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी भी कि नहीं, तो इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी राइट बना ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि कन्वर्ट हो सकती है एक राइट में, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका फादर किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। सो ये सिर्फ एक मियर पॉसिबिलिटी है, कोई राइट नहीं है ए का उसमें, तो ए उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लॉज बी, a mere right to re-entry for the breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property attached affected thereby. अब अगर एक बंदे ने किसी को लीज वगैरह पे प्रॉपर्टी दी है और उसे कहा था, ए ने बी को सपोजिंगली लीज पे प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, और उसे कहा था ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको तुम यूज कर सकते हो, पर इसमें कभी भी मतलब कोई चीज, मतलब इसकी जो जमीन है उस पर कुछ नहीं कर नहीं सकते हो तुम, जैसे कोई वेल नहीं बना सकते हो, यहाँ का कोई पेड़ नहीं काट सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन लगा दी और उस इंसान ने वो कंडीशन ब्रीच कर दी। अब उसने कहा था यहाँ पे जो ट्रीज है ना उन्हें कट नहीं कर सकते, और उसने ट्रीज कट कर दिए, तो उसकी कंडीशन ब्रीच होगी, अब उसे वो निकाल देगा, तो अब ये वापस एंट्री नहीं कर सकता। सो मियर राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इसमें। इसमें अब राइट जो है एंट्री का वो सिर्फ ए के पास रह गया, अब बी इसमें नहीं आ सकता और ना ही इस राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस राइट को, री एंट्री के राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक ओनर का राइट बन गया है, कोई और इसे एक्वायर नहीं कर सकता। सी, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. ईजमेंट क्या होता है, कोई राइट होता है एक, जो कि तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट है उससे नहीं बना है, पर ये यूज करने से मिला तुम्हें वो राइट। सपोजिंगली ए का यहाँ पर घर है, ए का इस लैंड पे घर है और उसके यहाँ से कुछ जगह निकलती है और साथ में बी का घर है। अब ये जो जगह है ये ए की ही है, पर उसने कभी यूज नहीं की, तो वो खाली पड़ी थी, और बी का घर यहाँ पर है। तो अब ए के इस रास्ते को बी यूज करने लग गया, बहुत टाइम से यूज करता ही जा रहा है, और वो रास्ता उसके घर से इधर से जा रहा है, तो इस राइट को ए का होने की बजाय, ए का तो है ही है वो राइट, ए की प्रॉपर्टी है क्योंकि वहां पर बी उसे यूज कर रहा है एज एन ईजमेंट्री राइट, और ए ने उसे कभी मना नहीं किया, वो यूज कर रहा है उस राइट को। तो अब ये जो राइट है ये किसी और को बी ट्रांसफर नहीं कर सकता कि सी का घर यहाँ है, डी का घर यहाँ है, तो बी उसे कह दे कि तू भी इस राइट को यूज कर ले। ये इतने सालों से ए ने मना ना करके बी को एक इम्प्लाइड अथॉरिटी दे दी कि हाँ तू उससे जा रहा है, चलो ठीक है, क्योंकि हमारा घर साथ में लग रहा है, उसने नहीं रोका, ये ईजमेंट्री राइट ये यूज कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी साथ है, पर ये नहीं अब दूसरे इंसानों को भी ये अलाउ कर देगा। सो ईजमेंट्री राइट को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिर्फ डोमिनेंट हेरिटेज के अलावा। तो जो ये राइट को एक्वायर कर रहा है, यूज कर रहा है, जिसका ये राइट है, उसके अलावा कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन। Clause D, all interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred. एक प्रॉपर्टी में अगर सारे राइट्स किसी ओनर को या किसी इंसान को दिए गए हैं, तो वो किसी और को वो राइट्स नहीं दे सकता। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि एक प्रॉपर्टी है, आप इसे यूज कर सकते हो 1 साल के लिए, इसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी मुझे वापस करनी है, और इसमें जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, चीजें आप ये यूज कर रहे हो, सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अब वो इंसान अपने भाई या बहन को कहते हैं कि तुम भी आके रह लो, तुम भी ये यूज कर लो, तो ये राइट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट किया है एंजॉयमेंट को सिर्फ कुछ इंसान के लिए। अगर उस इंसान के अलावा कोई और यूज करेगा तो वो ब्रीच हो जाएगी, तो ये एक ट्रांसफरेबल राइट नहीं है।
ये अगर रिस्ट्रिक्ट है किसी की पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, तो उसके अलावा कोई और इसे यूज नहीं कर सकता। A right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined, cannot be transferred. अब फ्यूचर मेंटेनेंस का जो राइट है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मेंटेनेंस का राइट वाइफ के पास अवेलेबल है, चाहे वो फ्यूचर हो। अब वो फ्यूचर मेंटेनेंस है सपोजिंगली, कि उसे अभी फ्यूचर में मिलेगी मेंटेनेंस, हर महीने मिल रही है, जो अगले महीने की मेंटेनेंस है वो फ्यूचर मेंटेनेंस है। तो वो किसके पास राइट है? सिर्फ वाइफ के पास, क्योंकि वाइफ को डिग्री मिली है, वाइफ का राइट है। ये थोड़ी आपको कोई और भी आके क्लेम कर लेगा, उसका भाई, उसका बहन, या उसका कोई भी और रिश्तेदार या कोई भी दोस्त, वो आके उस राइट को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक राइट है। सो दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ई, a mere right to sue cannot be transferred. sue करने का राइट किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही इंसान स्यू कर सकता है जिसका वो राइट है, जिसे कोई रिलीफ, मतलब जिसकी रेमेडी का राइट उसके पास है, जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। सो जिस इंसान का राइट है सिर्फ वो ही सूट डाल सकता है, कोई और इंसान उसके बिहाफ पे सूट नहीं डाल सकता। अब चोरी हुई है ए के घर में, तो ए ही सूट डालेगा। अब ये तो है नहीं उसका पड़ोसी जाके सूट डाला है, अभी ए के घर चोरी हुई है, मेरे को केस डालना, क्यों डालना है? राइट टू स्यू तो एक ही इंसान के पास है, तो वो ही डालेगा जिसका राइट है। A public office cannot be transferred, nor can the salary of the public officer, whether before or after it has become payable. एक पब्लिक ऑफिस को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पब्लिक ऑफिस कैसे एक्वायर होता है? किसी मेरिट्स पर, किसी एग्जाम के कंडक्ट पे, किसी को ऑफिस मिला है, किसी भी तरीके से उसके प्रोसीजर के हिसाब से उसे ऑफिस मिला है, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब ए ऑफिसर बन गया, अब ये थोड़ी है अपने भाई को भी कहेगा तू भी मेरी सीट पे आके बैठ जा, कोई नहीं तू बैठ जाया कर, तू काम कर ले मेरा, ऐसा थोड़ा ही होगा। पब्लिक ऑफिस है, किसी को किसी की वजह से मिला है ना, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके मेरिट्स की वजह से मिला है, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अनदर थिंग इज द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ना ही ए अपना ऑफिस ट्रांसफर कर सकता है, ना ही अपनी सैलरी को ट्रांसफर कर सकता है। एंड द सैलरी वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल, चाहे वो सैलरी पे हो गई है, चाहे वो पे होने वाली है, वो किसी भी टाइम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। Stipends allowed to military, naval, air force and civil pensions of the government and the political pensions cannot be transferred. अब जो भी स्टाइपेंड्स वगैरह हैं, जो कि सैलरी के साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई पेंशन मिल रही है, ये भी उसी इंसान की है जिसको मिल रही है, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि एक ही पेंशन आ रही थी, वो कहे कि नहीं मेरे भाई को दे दो, उसको पैसे की जरूरत है, ये चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती। H. No transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of interest affected thereby, or clause 2, for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of the Contract Act, or clause 3, to a person legally disqualified to be transferee. कोई भी ट्रांसफर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिपंगेंट नहीं हो सकता। जो भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो अनलॉफुल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और अगर वो इंसान भी डिस्क्वालिफाइड है, तब भी उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना स्पेसिफिकली दिए हुए हैं कि कौन कौन कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर सेक्शन 23 में दिया हुआ है क्या क्या अनलॉफुल चीजें हैं, कि जो कि फॉरबिडन है, अनलॉफुल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसी चीजों को किया नहीं जा सकता। तो इन चीजों को ही हम टीपीए में भी ध्यान देंगे। तो अगर वो चीजें इन चीजों में फॉल कर रही हैं, गलत हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली टीपीए में भी गलत हो जाएंगी। क्योंकि हमने सेक्शन 4 पढ़ा था ना कि कोई भी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी ट्रांसफर को गलत कह रहा है क्योंकि वो कुछ कंडीशंस को वॉयलेट करता है, तो वो टीपीए में ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। Clause I, nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy. टेनेंट अपना अनट्रांसफरेबल राइट है जो ऑक्यूपेंसी का, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक टेनेंट का राइट है एक प्रॉपर्टी पे कि वो टेनेंट है यहाँ पर ए, अब ये थोड़ी है कि ए टेनेंट था अब वो और भी लोगों को कहते कि तुम भी आप यहाँ के रह लो, उसका राइट है, वो अपने पैसे भर रहा है, लैंडलॉर्ड ने उसे दिया है कितने भी टाइम पीरियड के लिए टेनेंसी का राइट, तो वो किसी और को ऐसे नहीं दे सकता। Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying the revenue. फार्मर जिसका
लैंड है जो वो रेवेन्यू पेइंग लैंड है, जो कि सरकार को रेवेन्यू देता है, उसका जो लैंड है फार्मर, चाहे उसका जो रेवेन्यू है उसने नहीं पे किया, डिफॉल्ट हो गया, स्टिल वो उसके राइट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और द लेसी ऑफ एन एस्टेट, किसी स्टेट का जो लेसी है वो भी अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टेनेंट, फार्मर और लेसी। ये तीनों इंसान अपना राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना ही टेनेंट अपनी टेनेंसी राइट को दे सकता है, फार्मर अपने राइट को नहीं दे सकता, और लेसी भी अपने राइट को स्टेट के राइट को नहीं दे सकता। इन सबके राइट इन सबको ही अवेलेबल है, सिर्फ यही यूज कर सकते हैं, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसे ए से लेकर आई तक हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। जैसे कि ए में था हमारा कि जो मियर पॉसिबिलिटी है सक्सेशन का राइट, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बी था वाज राइट टू री एंट्री, कि प्रॉपर्टी में तुम वापस एंटर हो सकते हो या नहीं, उसका राइट। सी में था ईजमेंट्री। डी में था कोई भी इंजॉयमेंट का राइट एक पर्टिकुलर इंसान को। डी डी में था फ्यूचर मेंटेनेंस। ई में राइट टू फाइल अ सूट, किसी भी तरह का स्यू करना। एफ में था किसी का ऑफिस या उसकी सैलरी। जी में था स्टाइपेंड्स एंड पेंशंस। एच में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना कर रही है, और आई में था टेनेंट, फार्मर, लेसी, इन सब के राइट्स। सो ये सब चीजें ट्रांसफरेबल नहीं है एज पर टीपीए। सेक्शन 7, persons competent to transfer. Every person is competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part. जो भी इंसान कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की इंटाइटलमेंट है। अब इंसान कौन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? अगर हम देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कॉम्पिटेंसी उन्होंने हमें दी हुई है कि हाँ जी कौन कौन कॉम्पिटेंट है। तो वो कॉम्पिटेंसी कहाँ है? सेक्शन 11 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि हमें कॉम्पिटेंसी क्या बताता है? इंसान मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्क्वालिफाइड हुआ तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंसी सेक्शन 11 में साफ साफ दी गई है। एक तो वो इंसान 18 अबव हो, साउंड माइंड का हो, प्लस उसे लॉ किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई ना करती हो। दे आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्संस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जब कॉम्पिटेंट है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है प्रॉपर्टी को, होली, पार्टली, एब्सोल्युटली, कंडीशनली, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by law for the time being in force. अब जो इंसान कॉम्पिटेंट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो ट्रांसफर किसी भी तरीके से कर सकता है। तो प्रॉपर्टी जो है वो पूरी हो चाहे पार्ट हो, एब्सोल्यूट हो, कंडीशनल हो, किसी भी तरह से ट्रांसफर की जा सकती है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। Unless a different intention has appeared, expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. तो सिंपल ये है कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसके साथ जो भी इंटरेस्ट या लीगल इंसिडेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्सेप्ट अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मना ना किया गया हो। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड। अगर एक अलग इंटेंशन एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इम्प्लाई किया गया है कॉन्डक्ट से, तो वो चीज ही अलग है। अदरवाइज जब भी तुम एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके साथ जो जो चीजें अटैच्ड हैं, कोई इंटरेस्ट अटैच्ड है, कोई लीगल इंसिडेंट्स हैं, वो उसके साथ ही जाएंगे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी में अभी घर दे रहे हो, तो घर में अगर जो चीजें तुमने मतलब जब घर बेच रहे हो तो उसमें अगर पक्के वगैरह लगे हैं, तुम बेचना चाहते हो तो साथ ही जाएंगे। एक्सेप्ट तुमने लिखा हुआ है कि नहीं मैं तो पक्के उतार के लेके जाऊंगा, घर दे रहा हूँ, सामान नहीं दूंगा। अगर ऐसा नहीं कहते हो, ऐसा नहीं इंप्लाई करवाते हो अपने कॉन्डक्ट से, तो यही माना जाएगा कि घर के साथ पक्के वगैरह साथ ही जा रहे हैं। अब किसी को कोई मशीन, अब किसी को कोई कार दे रहे हो तो उसके साथ की जो चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी चीज उसके साथ अटैच्ड है, कोई भी उसके अंदर कोई चीजें लगाई गई हैं, कोई स्पीकर्स लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, तो उसके साथ ही जाएगा। एक्सेप्ट वो इंसान कह दे कि नहीं मुझे मेरे स्पीकर्स तो मैंने स्पेशली लगवाए थे, मुझे तो चाहिए, तो मैंने तो उतार के तुम्हें कार दूंगा, तो बात और रह गई। अदरवाइज वो स्पीकर्स साथ ही जाएंगे उसके।
तो ये होता है उसके साथ के इंटरेस्ट और लीगल इंसिडेंट्स प्रॉपर्टी के साथ ही जाते हैं. Such incidents include where the property is land, the easement annexed thereto, rents, profits thereof, accruing after the transfer, and all things attached to earth. अब जब लैंड की बात करते हैं तो उसके साथ ईजमेंट का राइट जाएगा ऑटोमेटिकली. कोई रेंट प्रॉफिट आने वाले थे, ट्रांसफर के बाद आ रहे हैं, वो भी उसके साथ ही जाएंगे. कोई और चीजें अटैच ना उसके साथ, वो भी उसके साथ जाएंगी, जैसे कि दरवाजा, खिड़की, पक्का, कुछ भी जो उसके साथ अटैच है वो उसके साथ ही जाएगा. दूसरा, where the property is machinery attached to earth, the movable parts thereof. अब एक मशीनरी बेच रहे हो तो ऑब्वियस उसके जो पार्ट्स वगैरह, नट्स, ये वो चीजें, छोटी मोटी चीजें, वो उसके साथ ही जाएंगी. And where the property is a house, the easement annexed thereto, rent therefore accruing after the transfer, lock, key, bar, door, windows, and all things provided for the permanent use therewith. अब एक घर बेच रहे हो तो उसके साथ उसका ईजमेंट, उसके रेंट्स जो कि आने वाले हैं, उसके दरवाजे के लॉक, दरवाजा, कोई भी तरह की चीजें, खिड़की या कोई भी चीजें जो परमानेंटली लगाई गई हैं, वो सब की सब उसके साथ जाएंगी. And where the property is a debt or other actionable claim, the securities thereof, except where they are also for other debts or claims not transferred to the transferee, but not the arrears of interest accrued before the transfer. अब जब तुम एक डेट को या एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहे हो तो अगर उसकी कोई सिक्योरिटी थी तो वो उसके साथ ही जाएगी, पर जो अरियर्स है इंटरेस्ट के वो उसके साथ नहीं जाएंगे. अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं? जो कि पिछले आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, अभी तक पे ही नहीं किए हैं. मतलब कि सपोज एक डेट था, हमने आज ट्रांसफर किया, एक सेकेंड, जैसे कि आज ट्रांसफर किया 29 को, और इस डेट पे कोई मेरे को इंटरेस्ट आना था या कोई चीज आनी थी पिछले महीने की, अप्रैल की, अभी तक उस बंदे ने पे ही नहीं की मेरे को, और मैंने तुम्हें आज ही ट्रांसफर कर दिया मई में. तो अब 29 मई के बाद जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है, कोई भी चीज आती है, वो तो बी की हो गई, ए ने जब ट्रांसफर किया. पर अगर वो इंसान अप्रैल का जो इंटरेस्ट था या कोई चीज थी वो जून में पे करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बी का हो जाएगा, वो ए का ही रहेगा, क्योंकि वो एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो पिछला इंटरेस्ट पड़ा था, ट्रांसफर के पहले का इंटरेस्ट था वो, इसलिए वो इंटरेस्ट पे राइट ए का ही रहेगा, वो बी का नहीं बन जाएगा. बी का इंटरेस्ट बनेगा 29 मई के बाद की चीजों पर. 29 मई से पहले जो भी चीजों का इंटरेस्ट था वो ए का ही रहेगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा. And where the property is money or other property yielding income, the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect. अब कोई मनी या कोई भी प्रॉपर्टी तुमने ट्रांसफर की है तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट या इनकम आती है, ट्रांसफर करने के बाद वो भी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगी. तो मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके बाद कोई भी चीजें आती हैं, कोई इनकम, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, वो सब का सब ट्रांसफर हो जाएगा, पर उससे पहले की चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो ओनर की रहेंगी. आई होप सबको क्लियर हो रहा है. किसी को कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ लेना बीच में. Section 9 deals with oral transfer. A transfer of property may be made without writing in any case in which a writing is not expressly required by law. जिस एग्रीमेंट को, जिस ट्रांसफर को एक्सप्रेस कोई प्रोविजन नहीं कहती कि राइटिंग में देना जरूरी है, उसे तुम ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हो. ऐसा कहीं नहीं लिखा टीपीए में कि सब कुछ रिटर्न ही होना चाहिए. ओरल ट्रांसफर भी किया जा सकता है जब हमें कॉन्ट्रैक्ट या हमें कोई, मतलब जब हमें कोई प्रोविजंस बाउंड नहीं करती, एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि हाँ जी तुम्हें तो रिटर्न में ही देना था. अगर ऐसा नहीं है कहीं प्रोविजंस में लिखा, देन यू कैन गो फॉर ओरल ट्रांसफर्स. Section 10, conditions restraining alienation. Whenever a property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting or disposing the interest in the property, the condition or limitation is void except in the case of lease, where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him. अब एक इंसान एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, पर उस पर कंडीशन लगा दी कि तू ये किसी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही इसको किसी को किसी के साथ बांट सकता है, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो होगा वैलिड, क्योंकि ट्रांसफर तो सही हुआ है ना, लिविंग पर्सन है, कॉम्पिटेंट है, दोनों ठीक है, सब ठीक है.
पर उसने कंडीशन लगा दी कि तू ट्रांसफर नहीं कर सकता, अभी कंडीशन हो जाएगी वॉइड। इस ट्रांसफर का इफेक्टिविटी इस चीज को मद्देनजर ना रखते हुए किया जाएगा। ऐसे माना जाएगा कि ये ट्रांसफर बिल्कुल सही हुआ है और ये कंडीशन थी ही नहीं कभी भी। सो दिस कंडीशन इज वॉइड, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ट्रांसफर वैलिड रहेगी और बी कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ, उस पर कोई मनाही नहीं है। सिमिलर टू दिस, अगर ये कंडीशन बी के किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई इसके अंदर क्लेम कर रहा है उस पर लगाई गई हो, उसका भी सेम इफेक्ट होगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगी। अब सपोज बी ने जब ट्रांसफर लिया तो बी के बाद उसका सन ये प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता था, तो यही चीज इस पर भी वैलिडेट करेगी कि ट्रांसफर इज वैलिड फॉर हिज सन बट द कंडीशन विल बी वॉइड। कंडीशन का इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर हमेशा वैलिड रहेगा और कंडीशन मानी जाएगी जैसे कि कंडीशन थी ही नहीं। सो दिस ट्रांसफर विल बी वैलिड विदाउट अ कंडीशन। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, ये ट्रांसफर थी पर अगर ये चीज हो जाए लीज, ये ट्रांसफर ना होकर एक लीज होती तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी, क्योंकि लीज थोड़े टाइम के लिए होती है, वापस आएगी लेसर के पास। तो अगर लेसर ने कोई कंडीशन लगा दी अपने बेनिफिट के लिए तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी। अब लेसर का बेनिफिट कैसे? अब लेसर ने एक बंदे को 1 साल के लिए लीज पे दी थी प्रॉपर्टी, हाँ जी तुम इसमें यूज कर सकते हो और 1 साल खत्म होने पर मुझे वापस कर देना प्रॉपर्टी। अब बी ने किसी और को डिस्पोज ऑफ कर दिया अगर इसके दौरान, तो नुकसान किसको होगा? ए को हो जाएगा, प्रॉपर्टी कोई और जब्त कर लेगा। तो इसलिए दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए द लेसर देन द कंडीशन इज वैलिड। सो सिर्फ लीज के केस में द कंडीशन जो कि रिस्ट्रेन कर रही है आपको डिस्पोज ऑफ करने में प्रॉपर्टी, दैट इज वैलिड। अदरवाइज किसी भी ट्रांसफर में कोई भी कंडीशन जो कि आपको डिस्पोजल पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है वो वॉइड ही रहेगी। The transfer will be like there is no condition attached to it, except in the case of lease. Provided that the property may be transferred to or for the benefit of a woman, not being a Hindu, Mohammedan, or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein. ये प्रॉपर्टी को हम किसी वुमेन को उसके बेनिफिट के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि हिंदू, मोहम्मदन या बुद्धिस्ट ना हो। तो इन 3 कास्ट को छोड़कर, इन 3 रिलीजन्स को छोड़कर कोई और वुमेन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए, जिसमें वो ट्रांसफर या चार्ज नहीं कर सकती। ये इसकी सेकंड एक्सेप्शन बन जाएगी कि अगर ये कंडीशन लगाई है एक वुमेन पर जो कि हिंदू ना हो, बुद्धिस्ट ना हो और मोहम्मदन ना हो, इन तीनों रिलीजन्स को छोड़कर अगर कोई वुमेन है और उस पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और उस पर ये कंडीशन लगा दी गई है कि तुम इसे ट्रांसफर नहीं कर सकती हो, तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रांसफर किया गया था उसके बेनिफिट के लिए किया गया था, उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए किया गया था। सो इसीलिए इस पर अगर कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो वैलिड होगी। सेक्शन 11, restrictions repugnant to interest created। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 13 ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सेक्शंस में से। 11 is restriction repugnant to interest created, wherein a transfer of property and interest therein is created absolutely in favor of any person। अब absolutely किसी की तरफ हमने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, absolute ट्रांसफर कर दी किसी को प्रॉपर्टी, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there was no such direction। अब एक इंसान को एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, चाहे वो सेल हो या किसी भी तरीके से हो, इसे ट्रांसफर कर दिया, पर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कि इसको तुमने यूज एक पर्टिकुलर तरीके से करना है। सो मोड ऑफ यूसेज एंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे कि कह दिया, घर दे दिया कि तुम ये 2 कमरे नहीं खोलोगे, सिर्फ वो वाला कमरा खोलना और वो वाली किचन है उसे ऐसे ऐसे यूज करना। अब ऐसी पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जबकि वो सारा का सारा घर बी खरीद चुका है, सेल हो चुका है वो घर, बी ने पैसे पूरे दे दिए, बी का घर है वो। अब फिर भी ए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तुम ये कमरे मत यूज करना, यहाँ पे से ऐसे करना, यहाँ पे वैसे करना, वहां पे उतना ही रहना, वो कबर्ड को मत खोलना। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे उसकी यूसेज पर, एंजॉयमेंट पर, तो ऐसा माना जाएगा ये कंडीशंस है ही नहीं।
वो अपने तरीके से उसे कैसे भी यूज कर सकता है. Being an absolute transfer, the transfer will be valid and the condition will be void. ऐसा माना जाएगा कि ट्रांसफर वैलिड है और कंडीशन है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कैसे भी इसे यूज कर सकता है. Where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such a direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है. अब इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसमें एक से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इसलिए लगाई गई थी ताकि दूसरी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय कर सको. वो दोनों प्रॉपर्टीज जैसे कि कनेक्टेड हैं, किसी भी वजह से उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ पर पानी मत छोड़ना वरना दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें पानी भर जाएगा. सो दिस इज फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई थी. तो ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड हो जाएगी, और अगर इसकी ब्रीच की तो उसके लिए वो कोई भी डायरेक्शन ऑर्डर कर सकता है. सो दिस कंडीशन इज अ वैलिड कंडीशन क्योंकि ये उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है. Section 12, condition making interest determinable on insolvency or attempted alienation. Where a property is transferred subject to a condition or limitation making any interest reserved or given to or for the benefit of any person to cease on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void. अगर एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, जब ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी, इसके साथ दो कंडीशंस लगाई कि अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए या फिर तुमने इसे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की तो ये ट्रांसफर को मैं खत्म कर सकती हूँ. इस पे ये कंडीशन लगा दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ट्रांसफर खत्म हो जाएगा. तो इसका ये माना जाएगा कि ट्रांसफर इज वैलिड पर द कंडीशंस आर वॉइड. इन कंडीशंस की कोई वैल्यू नहीं होगी. सो द कंडीशंस फॉर इंसॉल्वेंसी और डिस्पोजल will be deemed as such condition is void. Nothing in this section applies to condition in a lease for the benefit of the lessor or those claiming under him. पर ये conditions कब valid हो सकती है? इसकी exception है lease, क्योंकि lease किसी time period के लिए होती है. इंसान को नुकसान हो जाएगा, अगर डिस्पोज ऑफ कर दी तो लेसर के पास राइट नहीं रहेगा, किसी और को दे दिया उसके साथ वो बेचारा केस करता रहेगा, लड़ता रहेगा. अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी वही कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो पैसे ही नहीं भर पाएगा, वो लीज की रकम कैसे चुकाएगा. तो इसलिए ये दो कंडीशंस लीज में वैलिड है, अदरवाइज ये वॉइड कंडीशंस है. क्योंकि अगर हम इन कंडीशंस को लीज में वैलिड ना करते तो लेसर को नुकसान हो जाता बेचारे को. तो इसलिए ये कंडीशंस हमने लीज में वैलिड कर दी हैं. नाउ वी कम टू सेक्शन 13 व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हियर. दैट इज, इट सेज that a transfer for the benefit of unborn child. इस चीज में एक अनबॉर्न पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज टू अनबॉर्न पर्सन. पर अगर हम पीछे पढ़े, हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि वो लिविंग पर्सन होना चाहिए, पर इसमें तो अनबॉर्न पर्सन आ गया, तो इसको ट्रांसफर कैसे होगा? तो इसमें सेक्शन 13 में इसका प्रोसीजर बताया है. That where on a transfer of property an interest is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer. जिस दिन मैंने ट्रांसफर की उस डेट पे अनबॉर्न पर्सन था, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, अभी वो आया ही नहीं दुनिया में. Subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of remaining interest of the transfer in the property. अब जिस दिन मैंने आज ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, पर ये इंसान तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो अब ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी? किसी को जा ही नहीं सकती, लिविंग ही नहीं है. तो ये जो ट्रांसफर का एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी कि जो पहला ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर है वो एक इंसान लाइफ के लिए अपना एंजॉय कर सकता है. किसी का प्रायर इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उस प्रॉपर्टी में कि जब तक ये बंदा एग्जिस्टेंस में नहीं आता तब तक यू कैन एंजॉय दिस राइट.
एंड देन व्हेन दिस पर्सन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये ऑटोमेटिकली इससे इसमें चला जाएगा। और जब ये इसमें जाएगा तो एब्सोल्युटली कंप्लीटली जाएगा, पार्टली नहीं जाएगा। अगर वो पार्टली गया तो वो खत्म, वॉइड हो जाएगा, वॉइड। वैलिड वो तभी होगा जब वो पार्टली नहीं कंप्लीटली इसमें चला गया, तभी वो वैलिड होगा। तो सिंपली ए ने प्रॉपर्टी अगर सी में ट्रांसफर करनी है, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न है, तो उसमें ट्रांसफर करने से पहले ही हैज टू मेक एन इंटरेस्ट इन सम अदर पर्सन, सो दैट विल बी बी। द प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन बी एंड दैट इज टू बी डन इन द सेम ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कुछ एक ही एग्रीमेंट में, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। सो एक ही ट्रांसफर ने, ए ने बी को दिया, और फिर जब तक सी आएगा तो सी के पास चला जाएगा, दैट टू कंप्लीटली। इन दिस वे एक प्रॉपर्टी को एक अनबॉर्न पर्सन के पास भेजा जा सकता है, इसी प्रोसीजर के थ्रू। मैम मैं आई हैव अ क्वेरी मैम। यस यस। ये मैम अगर ये अनबोर्न चाइल्ड जो हम बोल रहे हैं, ये क्या मदर्स वॉर्म में बेबी है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, या बिल्कुल कोई मतलब कि कोई इस तरह की एग्जिस्टेंस नहीं दोनों है उसके पहले? दोनों दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। Let's take up the illustration. A transfer the property of which he is the owner to be in trust for A and his intended wife successively for their lives, and after the death of the survivor for their eldest son. अब इसमें कोई भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो A ट्रांसफर करता है B को, कि फिर उसके बाद ये तुम्हारी वाइफ के पास चला जाएगा, जब तुम्हारी शादी होगी फिर तुम्हारा जो बच्चे होंगे उसमें से एल्डेस्ट जो होगा ना, उसको चला जाएगा तुम्हारी डेथ के बाद। एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर ए इज सेकंड सन, और जब वो मर जाएगा तो तुम्हारा जो दूसरा बेटा होगा तो उसके पास चला जाएगा। अब जो इंटरेस्ट क्रिएट किया था, so created for the benefit of the eldest son, does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. पर ये ट्रांसफर जो था वो वॉइड हो गया। अब इलस्ट्रेशन में क्या था, ए ने बी में बनाया कि बी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम और तुम्हारी वाइफ लाइफ टाइम तक इसे एंजॉय करना, फिर तुम्हारा जो एल्डेस्ट सन होगा ये उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और जब वो मर गया तो तुम्हारा जो सेकंड सन होगा उसके पास चला जाएगा। और मैंने सेक्शन 13 में क्या कहा था कि अनबॉर्न इंसान के पास जब राइट जाएगा प्रायर इंटरेस्ट से, तब वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब इसमें ये अनबॉर्न था, ये तो भी इसकी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहां से हो गया, तो अनबॉर्न था, अब एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो इसके पास ये एब्सोल्यूट जाना चाहिए था। पर ए ने क्या किया, ए ने कहा पहले इसके पास जाएगा, फिर ये जब चला गया तो इसके पास सेकंड के पास चला जाएगा, तो ये इंटरेस्ट वॉइड हो गया, ये वैलिड ही नहीं हुआ। क्योंकि जब अनबॉर्न पर्सन के पास एक बार राइट आ जाता है तो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 13 में एक वैलिड ट्रांसफर बनेगा, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ओनर। तो ट्रांसफर को वैलिड करने के लिए ए तक, यहीं तक इसे एब्सोल्यूट कर देना चाहिए था। जैसे ही इसने इसका राइट इसको दे दिया एक सेकंड अनबॉर्न पर्सन को, उसी वक्त ये खत्म हो गया, ये वॉइड बन गया, क्योंकि ये वैलिड यहीं तक था। जो लाइफ इंटरेस्ट था वो तो बिल्कुल ठीक चला, पर जैसे ही उन्हें एक फर्स्ट अनबॉर्न चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया, पार्शियल इंटरेस्ट दिया, उसी से ये वॉइड हो गया और ये ट्रांसफर वैलिड नहीं रहा। Section 14 is rule against perpetuity. No transfer of property can operate to create an interest, which is to take effect after the lifetime of one or more living persons at the date of such transfers, and the minority of some persons who shall be in existence at the expiration of the period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong. अब ये बताता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि कितनी देर तक लटकाते हैं, तो मतलब चलती जा रही है वो चीज। अब इन्होंने ये कहा कि जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो एक अनबॉर्न को, तो एक टाइम पीरियड तो हम करेंगे, ऐसे तो पता नहीं तुम कब तक चलाते रहोगे, कब दोगे उसे। तो इसने कहा कि ये जब एक लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करता है, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वो उसकी तो करता है लाइफ टाइम तक, कि जब तक ये जिंदा है। और जब सी जो अनबॉर्न है, उसको कब मिलेगा वो, जब वो 18 का हो गया, मतलब वो यूज कब करेगा, ये सिर्फ तब तक रुक सकता है। तो ये जो ट्रांसफर था जो कि सी तक इफेक्टिव नहीं हो पाया, इसके रुकने का टाइम पीरियड है लाइफ टाइम ऑफ बी प्लस मेजोरिटी 18 ईयर्स ऑफ सी। अगर सी बॉर्न होने वाला है, तो जो टाइम ये अभी
वूम में है मदर की, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो फिर तो सारा टाइम पीरियड ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके रोकने का टाइम है लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन हु हैज अ प्रायर इंटरेस्ट प्लस द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, द अनबॉर्न पर्सन। तब तक हम इसकी प्रॉपर्टी को रोक कर रख सकते हैं। ये इंटरेस्ट सिर्फ तब तक रुकेगा, इसके अलावा और ज्यादा इसको रिमोट नहीं कर सकते। इसके बाद ही इसमें वेस्ट कर जाएगा, इसको ये यूज कर सकता है। तो इसका इंटरेस्ट का जो टाइमिंग है वो है लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट प्लस द मेजोरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन, द मिनोरिटी, जिसने उसकी मिनोरिटी की एज थी। जैसे वो मेजर हुआ इंटरेस्ट उसमें वेस्ट कर जाएगा। सो दिस इज अ रूल ऑफ परपेचुइटी। Section 15, transfer to the class, some of whom come under section 13 and 14. If on a transfer of property an interest is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the conditions contained in section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. Now what if section 15 कहता है कि तुमने जो प्रॉपर्टी ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वो एक क्लास को करी, जैसे कि बी के सारे पोते सपोज, या फिर बी की सारी फैमिली, या कोई क्लब के मेंबर्स, या किसी भी एक क्लास को करा, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 बहुत सारे जाने थे। अब वो अनबॉर्न थे, एग्जिस्टेंस में नहीं थे, इन सबको इसने ट्रांसफर कर दिया। तो अब इन सब में जब ट्रांसफर किया तो अगर किसी के ट्रांसफर को लेके 13 या 14 की कंडीशन वॉयलेट हो रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ उसी इंसान का वॉइड हो जाएगा जिसकी 13 की या 14 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। बाकी सबका ट्रांसफर वैलिड रहेगा। जिसके ट्रांसफर की कंडीशंस कंप्लीटली 13 या 14 के हिसाब से नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों का ट्रांसफर फेल होगा, बाकी सबका ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। क्लास का मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदे का हुआ तो सारी क्लास ही सफर करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी ट्रांसफर में प्रॉब्लम है सिर्फ वो ही सफर करेगा, बाकी सबका ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। सो दे नीड टू फॉलो सेक्शन 13 एंड 14, और जिसकी वॉयलेशन पे ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ट्रांसफर विल फेल। Section 16, transfer to take effect on the failure of prior interest, where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, an interest is created for the benefit of a person or a class of persons, failed in regard to such persons or the whole of such class, any interest created at the same transaction and intending to take effect after or upon such failure of such prior interest also fails. अब 16 कहता है जब तुम एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा, फिर उसके बाद एक बंदे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल कर गया, इफ इट फेल्स, देन ये जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट था इट विल ऑटोमेटिकली फेल। कि अगर इसमें फ्लॉ आ गया, पहला वाला ये स्टेप उसका गलत निकला, तो दूसरा स्टेप कहां से वो आगे कंप्लीट कर पाएगा? जब वो पहले स्टेप पे फेल हो गया तो ये सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो अगर 13 14 की कोई कंडीशन वॉयलेट कर दी, पहले स्टेप पे फेल ही हो गया प्रायर इंटरेस्ट, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली फेल। ये ट्रांजैक्शन सारी की सारी फेल हो जाएगी, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। Section 17, direction for accumulation, where the terms of Transfer of Property Act direct that income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than, मतलब इसमें जो इनकम प्रॉपर्टी से एक्रू होने वाली थी या अराइज हो रही है, उन सब की एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहा है कि वो सारी इनकम को तुम इकट्ठा करते रहो, होली या फिर पार्ट, ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर किया उसकी लाइफ, और पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर पीरियड जो है 18 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इससे ज्यादा तुम उसको कब कर सकते हो? सच डायरेक्शन सेव एज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड बी वॉइड, अगर ऐसी कोई डायरेक्शन होगी तो वो वॉइड हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा पीरियड के लिए तुम इनकम को रखोगे, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर अगर इससे ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ गया या 18 साल से ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ गया इनकम की एक्यूमुलेशन का, तो वो वॉइड हो जाएगा। To the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods, बस जितना इससे एक्सीड कर गया वो वॉइड हो जाएगा। अगर वो लाइफ तक है तो वो वैलिड है, जैसे वो एक ही लाइफ से ज्यादा हुआ वो वॉइड हो जाएगा। और वैसे ही 18 साल तक था, 18 साल से ऊपर हुआ
तब भी वो void हो जाएगी accumulation जो वो कर रहा है. And at the end of such last mentioned period, the property and the income shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. और जब हम इसे void कर देंगे, मतलब ये खत्म हो गया, तो इसे हम ऐसे ही यूज करेंगे जैसे कि जो पीरियड दिया गया था वो खत्म हो गया, उसके बाद उसका यूसेज करना था. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही लाइफ टाइम के बाद उसे यूज करना था, एक ही लाइफ के बाद उस प्रॉपर्टी को यूज, उस इनकम को यूज करना था. अब वो एक्सीड कर गई, वॉइड हो गया, उसको छोड़कर वो जैसे ही खत्म हुआ पीरियड उसको यूज करने लग जाएंगे, कि जो यूज अब करना था इसकी लाइफ के बाद वो अब यूज करना शुरू कर दिया. The section shall not affect any direction for accumulation for the purpose of, पर ये जो कंडीशन लगाई है कि 18 साल से ऊपर नहीं कर सकते हो, ट्रांसफरर की लाइफ से ऊपर नहीं कर सकते हो, इस कंडीशन की 3 एक्सेप्शंस दी गई हैं कि द सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ. डायरेक्शन जो एक्यूमुलेशन की दी गई थी, अगर वो इन 3 कारणों में फॉल करती है, तो अगर वो एक ही लाइफ से बढ़ ही क्यों ना जाए वो वैलिड होगी. और वो कारण क्या है? फर्स्ट, द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एन इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफरर. अगर वो जो इनकम थी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसका पर्पस है ए के डेट्स को पे करना या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के डेट्स को पे करना. अब ए मर गया, ए के वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कोई डेट्स थे उनके, उनको पे करना. इसके लिए यूज कर रहे हो, इनकम को एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यूज ऑफ द ट्रांसफरर और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एन इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर. अगर ये जो पोर्शन हमने लाइफ के बाद रखे हुए हैं, इनकम रखी है, ये ए के बच्चों के लिए या उनके होने वाले बच्चों के लिए है, तो भी हो सकता है. रिमोटर इश्यूज, उनकी प्रोविजंस उनके लिए बनाई गई है, उनके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, तो भी कर सकते हैं. द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, अगर वो प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसकी मेंटेनेंस के लिए रख रहे हैं, तो भी उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं. सो एंड सच डायरेक्शन शैल मे बी मेड अकॉर्डिंगली. तो इन 3 चीजों के कारणों की वजह से अगर हम प्रॉपर्टी की इनकम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड एज वेल, तो वो वैलिड हो जाएंगी, प्रोवाइडेड वो 3 कंडीशंस में ही फॉल करना चाहिए. दैट इज फॉर पेइंग डेट्स, फॉर चिल्ड्रन और फॉर द प्रॉपर्टी मेंटेनेंस. अगर इन 3 चीजों के लिए है, इन 3 चीजों में से किसी भी कारण के लिए है, तो उस प्रॉपर्टी की इनकम को हम एक्यूमुलेट ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. सेक्शन 18, the transfer in perpetuity for the benefit of public. The restrictions in section 14, 16 and 17 shall not apply in the case of transfer for the benefit of public in advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to the mankind. Now section 18 is an exception to 3 sections, that is 14, 16 and 17. कि 14 में कहते हैं कि परपेचुटी है जो कि लाइफ टाइम प्लस 18 साल से ऊपर नहीं कर सकते हो. 16 कहता है कि प्रायर इंटरेस्ट फेल्स तो सब्सिक्वेंट आल्सो फेल्स. 17 भी ये कहता है कि लाइफ या 18 साल से ऊपर तक तुम उसे एक्सीड नहीं कर सकते, इनकम को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो. पर इन सबकी एक्सेप्शन है 18 में, जो कि कहती है कि ये सब कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी जब हम करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, ये कोई भी मैनकाइंड के लिए कोई बेनिफिशियल चीज है, अगर हम उसके लिए इन चीजों को यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है. तो पब्लिक इंटरेस्ट जब आ गया तो ये कंडीशंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये कंडीशंस उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती. Now another section is section 19. This is a vested interest. अब ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19, 21. 21 इज कंटेंजेंट इंटरेस्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन पे की क्वेश्चन आ सकता है. इसे हम लेट्स टेक अप इट टुमारो, कल ले लें इसे, ऐसा ना हो कि सब कंफ्यूज हो जाओ. बोलो कि पढ़ना है अभी, और मुझे ये कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अब इस पे टाइम लगेगा थोड़ा, ये समझने वाली चीज है. इसे रिवाइज कर लेना, वी कैन टेक अप टुमारो बाकी. अरे कोई तो बोलो. ओके मैम. ओके ठीक है, इसे रिवाइज करके आना. I'll ask